Hello everyone, Himanshu this side again. So welcome back, and today we are going to discuss the third part of vector. And in the previous parts, that was part 1 and part 2, we discuss about vectors, that what vectors are and what are the type of vectors and how do you add vector, subtract vector. We learned about the triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition and polygon law of vector addition. In today's class, we are going to discuss a very main part of vector algebra, that is vector multiplication. So in this class we are going to learn how do we multiply two vectors and what are the operations that we perform on vector multiplication. So this is vector part 3. So vector part 3, and in this part 3 we are going to learn about vector multiplication. So, in vector multiplication, there are two types of vector multiplication, which are dot product and cross product. So, dot product is also called as scalar product and cross product is also known as वेक्टर प्रोडक्ट. जैसा नाम वैसा काम. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में कुछ इस तरीके से किसी इस ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं such that their end result is a scalar quantity, then such a product is called as dot product. And if you multiply two vectors in such a manner that end result is a vector quantity, then the operation used is called as क्रॉस प्रोडक्ट. सो दो तरीके के बेसिक ऑपरेशंस हैं डॉट प्रोडक्ट में, जहां पर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, व्हिच आर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो वन बाय वन हमें डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करना है. सो स्टार्टिंग विद डॉट प्रोडक्ट. सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी से, एंड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए modulus of b cos theta. Here you can see that it is a scalar quantity. ठीक, सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, मॉड ए मॉड बी एंड cos theta. Now talking about the properties of dot product. First property of dot product is that it is commutative, that is a dot b it is equals to b dot a. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चाहे आप a वेक्टर को b से डॉट प्रोडक्ट कीजिए या b को a से करिए, रिजल्ट क्या रहने वाला है, सेम. दैट इज द ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट वुड नॉट मैटर. ठीक है, तो मैटर क्या करेगा, मैटर सिर्फ यही करेगा कि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट डजंट मैटर. इसका मतलब है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, एंड रिजल्ट तो 10 ही आने वाला है. सिमिलर इज द केस विद डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई. सेकंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मींस a dot b plus c. So a will distribute over b and c. It will be a dot b plus a dot c. So this is how you apply the distributive property in dot product. Next is angle between two vectors. इनसे चलिए एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे. थर्ड इज इट इज मैक्सिमम when theta equals to 0 degree. Fourth, it is minimum when theta equals to 90 degree. मतलब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम आता है, कितना आता है, 0 आता है जब एंगल कितना हो जाए, 90. cos 90 की वैल्यू आप सब जानते हैं कितनी होती है, 0. therefore a dot b which is mod a mod b cos 90 would give us 0 value. Fifth, I cap dot I cap it is equals to j cap dot k cap j cap it is equals to k cap dot k cap.
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। कैसे? आई कैप डॉट आई कैप लेते हैं फॉर इंस्टेंस, तो ये क्या होगा mod 1 एंड cos 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू अगेन कितनी होती है 1। सो आई कैप डॉट आई कैप इज 1। मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स का, दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है 1। ठीक है, नेक्स्ट आई कैप डॉट जे कैप इट इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इट इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। इन सब की वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब क्या है, टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है 0। दैट इज टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। एक निकाल भी देते हैं, आई कैप डॉट जे कैप इट इज mod आई 1 mod j 1 एंड cos ऑफ 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0। सो आई डॉट जे कैप इज 0। ठीक है, क्लियर। सेवंथ प्रॉपर्टी इज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट is square of the vector, which means that a dot a is nothing but a square, which is a scalar quantity. So these were some properties of dot product. Hope आपको समझ में आई होंगी, and please note down or take a screenshot. Now moving on to the applications where dot product is applicable. तो applications of dot product में सबसे पहले हम बात करते हैं to calculate the angle between two vectors. So using dot product you can calculate the angle between two vectors. Second, to check orthogonality of two vectors, that is if the two vectors are perpendicular to each other or not. If they are perpendicular to each other, if A is perpendicular to B, then A dot B is 0. Third, to calculate work done. फिजिक्स में कहां पर यूज होता है इसका? टू कैलकुलेट वर्क डन, इट इज W इज इक्वल टू F डॉट S. फोर्थ, टू कैलकुलेट पावर. ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट V. These are all the applications of dot product. ठीक है, clear. Now moving on to the physical significance of dot product. What is the physical significance of dot product? The physical significance of dot product is that it tells us about how much component of a vector lies along other vector, कि एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट दूसरे के along lie करता है. If it completely lies along other vector, then the vector is parallel to each other, and if no component of A lies on B or B lies on A, then the two vectors are independent of each other or orthogonal to each other. That is, दो वेक्टर्स लेते हैं A और B, एंड इनके बीच का एंगल है थीटा. सो दिस प्रोजेक्शन Bx it is equals to B cos theta. So what is dot product A dot B? It is nothing but this projection B cos theta and इसका product with A, that is A B cos theta. So dot product is nothing but product of projection of B with magnitude of A. ठीक है, that is how much component of B lies along A. For example,
if B lies completely along A, so B dot A is simply mod B mod A, and if B is completely independent of A, that is perpendicular, then A dot B is mod A mod B cos 90 degree, that is 0. ठीक है, so this is the physical significance of dot product. Please note down, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. Now moving on, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मूविंग ऑन, ए डॉट बी फाइंड आउट कैसे करते हैं. सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं. ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है. एंड बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एंड यू वांट टू फाइंड आउट ए डॉट बी. तो आप क्या करेंगे, ए डॉट बी के लिए यू वुड सिंपली राइट एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. Now, like any other multiplication, what you will do is you will take ax I cap and multiply it with bx I cap, by j cap and bz k cap and then add them. ठीक है, तो सबसे पहले हम ax bx स्केलर मल्टीप्लाइड विद स्केलर, बचेगा क्या, I cap डॉट I cap प्लस ax by क्या बचेगा, I cap डॉट j cap प्लस ax bz, this multiplied by this, बचेगा क्या, I cap dot k cap. Now from the previous knowledge you all know that I cap dot I cap is 1, that is two parallel vectors का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, एंड टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0. सो I cap dot I cap तो 1 देगा, बाकी ये दोनों क्या देंगे 0. तो यहां से क्या बनेगा ax bx. नाउ इन अदर स्टेप आप क्या करेंगे, ay को bx से मल्टीप्लाई करेंगे, by से करेंगे और bz से करेंगे. सो ay with bx j cap dot I cap will again give you 0. ay with by j cap dot j cap will give you 1 and ay with bz j cap dot k cap will again give you 0. तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ay by, एंड इन दी एंड az को आप तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 0 यहां 0, यहां क्या मिलेगा az bz. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, आपको सिमिलर कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू ऐड देम. ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ a टू x कंपोनेंट ऑफ b, y कंपोनेंट ऑफ a टू y कंपोनेंट ऑफ b एंड z कंपोनेंट ऑफ a टू z कंपोनेंट ऑफ b, और इन सब के बीच में क्या कर देना है, एडिशन कर देना है. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट. नाउ मूविंग ऑन, इतना नोट कर लीजिए आप. उसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, सच दैट इन क्वेश्चंस के बाद यू आर रेडी, कंप्लीटली डन विद योर टॉपिक डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे हैं, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए. दिस क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ वेक्टर a, देयर इज अ वेक्टर b, उनकी वैल्यूज गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. इन द एप्लीकेशंस यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. सो व्हाट यू विल डू, a डॉट b इज mod a mod b cos theta. Now you want to calculate this cos theta, which would be a dot b अपॉन mod a mod b. अब a डॉट b अभी सिखाया था आपको कि क्या करें, सिमिलर कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो x कंपोनेंट विद x कंपोनेंट 2 4 8 प्लस y कंपोनेंट विद y कंपोनेंट अगेन 4 2 8 प्लस z कंपोनेंट विद z कंपोनेंट, दैट इज
-16, ठीक है, अपॉन मॉड ए मॉड बी। अभी न्यूमरेटर को देख लीजिए कितना आ रहा है 0, दिस मीन्स थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। नोट कीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या कह रहे हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कंडीशन हमें गिवन है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, एंड तो हम प्रीवियस नॉलेज ऑफ वेक्टर से जानते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है 0। तो सिंपली यू हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट एंड इक्वेट इट विद 0। तो क्या करेंगे आप, ए डॉट बी निकालेंगे और उसे किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। सो क्या आएगा, 2 i कैप इंटू आई कैप, दैट इज -8 j component with j component, that is -18, and k component with k component, that is प्लस लैम्डा। ठीक है, क्लियर। ये किसके बराबर आएगा 0, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 26। तो ऑप्शन बी, ठीक है। आई कंपोनेंट के साथ -8, जे कंपोनेंट के साथ -18, एंड के कंपोनेंट के साथ -1 माइनस लैम्डा गिव्स लैम्डा। टोटल कितना हो गया 26, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, टू फोर्सेस F1 एंड F2 जिनकी वैल्यूज गिवन है आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, द एंगल बिटवीन, अगेन वही क्वेश्चन, इट इज आस्किंग यू अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हाउ डू यू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यू सिंपली डू द cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b कैलकुलेट करते हैं, आई कैप, यहां क्या कंपोनेंट आई कैप, क्या यहां आपको कोई आई कैप का कंपोनेंट दिख रहा है, जी नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 0। यहां जे कैप है, यहां जे कैप का कंपोनेंट है जी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना होगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आई है 6। नाउ टॉकिंग अबाउट मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या करना है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ क्या करना है, j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, तो ये कितना आएगा 6 अपॉन 5 रूट 8। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स 6 अपॉन 5 रूट 8, रूट 8 कितना होगा 2 रूट 2, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया वैल्यू cos इनवर्स 3 5 रूट 2, तो ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, देखते हैं कोई और क्वेश्चन है, नहीं तो अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। एंड वी ऑल नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, वाई सो, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट क्रॉस प्रोडक्ट, वी रिप्रेजेंट क्रॉस प्रोडक्ट बाय a क्रॉस b, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin theta, this whole term only gives magnitude. Now talking about the direction part, which is given by n cap, where n cap is perpendicular to both a vector and b vector। तो n cap क्या रहने वाला है, इसकी खासियत रहने वाली है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, मतलब ये a और b दोनों के प्लेन से क्या होगा परपेंडिकुलर, या तो आउटवर्ड्स या फिर इनवर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि a क्रॉस b कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर a ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड वेक्टर b bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो a क्रॉस b कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट मेथड से, i कैप j कैप एंड k कैप, ठीक।
अब क्या करेंगे, ax ay and az bx by and bz। तो सिंपली आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। एंड डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू टेक आई कैप एंड एलिमिनेट इट्स रो एंड कॉलम एंड क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, ay bz माइनस az by। नाउ माइनस जे कैप, अभी माइनस साइन क्यों आया, इन अ मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, दीज आर कॉल्ड एज रोज, इट इज कॉल्ड एज कॉलम। और ये जो कोफैक्टर्स के आगे लगता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर i प्लस जे, वेयर i रिप्रेजेंट्स -1 की पावर i प्लस जे, वेयर i रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड जे रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम। अब इस एलिमेंट के लिए देखिए कौन सी रो है, फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 1 प्लस 2 दैट इज 3 विच इज नेगेटिव। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो इट वुड गिव ax bz, ठीक है, बाकियों का क्या कर देना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो रो मतलब कॉलम एंड रोज, तो बचा क्या, ax bz az bx minus az bx। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टर्म k कंपोनेंट, तो k कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे भाई, -1 की पावर i प्लस j। नाउ दिस टाइम i इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 is 4, तो इस बार क्या मिलेगा, प्लस k कैप एंड अगेन एलिमिनेटिंग द कॉलम एंड रोज, ax by minus ay bx। so this is the value of a cross b which is a vector quantity, ठीक है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सो टॉकिंग अबाउट सम प्रॉपर्टीज, अच्छा पहले डायरेक्शन निकालना भी सीख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। A क्रॉस B, इट मीन्स A से B, ठीक है। तो A का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, B के साथ, तो A से कहां जाना पड़ेगा, B में। तो अगर आपको A से B जाना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे, आप अपनी फिंगर्स को पॉइंट आउट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ A। आपको कहां से कहां जाना है, A से B, तो यू विल पॉइंट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ A and palm facing towards B। Now you will curl your fingers from A to B and the direction in which your thumb points gives the direction of A cross B, ठीक है। So point your fingers along A with the palm facing towards B। Now curl your fingers from A to B and the direction in which the thumb points gives the direction of n cap, ठीक है। तो अभी सीख लीजिए इसे एक बार, इसके बाद आने वाली फिजिक्स में जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यू विल डायरेक्टली यूज दिस, ठीक है, A क्रॉस B। और क्या करना है आपको, यू हैव टू पॉइंट योर फिंगर्स अलोंग A एंड द पाम फेसिंग टुवर्ड्स B। फिर आप A से B अपनी उंगलियों को घुमाएंगे इन द डायरेक्शन इन विच योर थंब पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ n कैप विच इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B का रिजल्टेंट, ठीक है। So this is how you calculate the magnitude as well as direction of A cross B। Now talking about the properties. So first property, unlike dot product, cross product is not commutative, rather it is anti-commutative। Why? A cross B equals to minus of B cross A। कैसे?
ये A है और ये B. So when you try to find out A cross B means A से B, then your thumb point outwards. तो इसकी डायरेक्शन क्या है? Outwards. Now when you try to find out B cross A, the thumb point inwards, which is exact opposite direction. So A cross B is negative of B cross A. ठीक है. Second property, it is distributive when the order of the vectors is maintained. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा इफ द ऑर्डर इज मेंटेन. नेक्स्ट, मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है? व्हेन थीटा इज 90, दैट इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स. एंड फोर्थ, मिनिमम when theta equals to 0 degree, that is parallel vectors. तो जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? मिनिमम. ठीक है. फिफ्थ, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है? के कैप. जे कैप क्रॉस के कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है? आई कैप. एंड के कैप क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है? जे कैप. ठीक है, क्लियर. On the other hand, j cap cross i cap, since एंटी कम्यूटेटिव है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस के कैप. के कैप क्रॉस जे कैप, इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस आई कैप. एंड आई कैप क्रॉस के कैप, इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस जे कैप. तो हाउ डू वी फाइंड दीज वैल्यूज? यू टेक आई कैप, जे कैप एंड के कैप एंड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के दौरान i क्रॉस j इज k, j क्रॉस k इज i, k क्रॉस i इज j. तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो वैल्यूज क्या रहेंगी क्रॉस प्रोडक्ट की? पॉजिटिव. एंड क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी क्रॉस प्रोडक्ट की? नेगेटिव. सो दिस इज हाउ यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. So what does cross product gives? Cross product gives area of parallelogram. ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करते हैं. आपके मन में सवाल आ रहा होगा कैसे? सो लेट अस फाइंड आउट कैसे. सो दिस इज B, दिस इज A, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है. अलग ले लेते हैं, इसे नीचे वाले को ही ले लेते हैं, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है. सो व्हाट इज एरिया? एरिया इज बेस इनटू हाइट. नाउ सो एरिया इज बेस इनटू हाइट. सो इसका बेस कितना है? बेस इज मॉड ए. और हाइट अगर हम कैलकुलेट करें, इफ दिस इज द एंगल थीटा, दिस वुड बी हाइट. एंड यू ऑल नो दैट फ्रॉम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स दैट इट इज b sin थीटा. तो मॉड b sin थीटा, एंड विच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b gives the area of parallelogram. So this was the physical significance of vectors. Now talking about what are the applications of vectors. They have vivid application, multiple application. First, it is very important to calculate the torque. Torque is r cross f. Second, angular momentum r cross p. 11th क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को. Third, torque, angular momentum, force on a moving particle in a uniform magnetic field, charge particle in a uniform magnetic field, which is Fm q v cross b. 12th क्लास में पढ़ेंगे ये आप. And fourth, velocity, relation between linear velocity and angular velocity, v is omega cross r. So these were some applications of cross product. Now coming on to the questions to quickly finish this video.
तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने डॉट प्रोडक्ट पे करे, कुछ क्वेश्चंस हम क्रॉस प्रोडक्ट पे करेंगे। So this is the first question in your screen. If the two vectors this is 2 I cap plus 3 j cap minus k cap and minus 4 I cap minus 6 j cap minus lambda k cap are parallel to each other. Parallel का मतलब क्या है? A क्रॉस B, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। सो हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इनका और किसके बराबर इक्वेट कर देना है? 0 के बराबर। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। I cap j cap k cap 2 3 minus 1 minus 4 minus 6 minus lambda। सबसे पहले a क्रॉस b अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो दिस वुड बी I cap minus 3 lambda minus minus plus minus 6, ठीक है। तो minus 3 lambda minus 6 minus j cap, ये कितना होगा? minus 2 lambda minus 4 and plus k cap, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे minus 12 and minus minus plus minus 12 plus 12, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो ये तो 0 ही हो गया k कंपोनेंट, और अगर मैं i कंपोनेंट को 0 के बराबर रखूं तो minus 3 lambda minus 6 कितना होना चाहिए? 0। दिस मीन्स 3 lambda is equals to minus 6, दिस मीन्स lambda equals to minus 2, ठीक है। मैं j से भी ये निकाल सकता हूँ। यहाँ से क्या आएगा? 2 lambda plus 4 equals to 0, that is 2 lambda equals to minus 4 and lambda equals to minus 2। तो कैसे भी कैलकुलेट करिए, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? minus 2। हियर देयर शुड बी माइनस, ठीक है। तो लैम्डा कितना होगा? minus 2 होगा। तो नोट कीजिए आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहता है क्वेश्चन कि इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स गिवन देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। सिंपली आपको a क्रॉस b कैलकुलेट करना है और देन उनका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। बड़ा इजी टास्क है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। I कैप j कैप k कैप 3 1 2 2 minus 2 and 4। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो I कैप निकालिए, ये कितना होगा? 4 minus 2 into 2 is minus 4 minus plus 4 minus j cap, ये कितना आएगा? 12 minus 4 plus k cap minus 6 minus 2, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? मैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? x कंपोनेंट का स्क्वायर, 4 plus 4 8 का स्क्वायर, ठीक है। 12 minus 4 8 minus 8 का स्क्वायर, और minus 6 minus 2 अगेन minus 8 का स्क्वायर। इन सबको ऐड कर दीजिए तो 8 क्या आ जाएगा यहाँ से? कॉमन एंड रूट 3। तो 8 रूट 3 विल बी आवर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट एंड देन वी विल फिनिश द वीडियो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन एज a and b, then what is the area of parallelogram? You simply know that the magnitude of a and b gives the area of parallelogram। तो क्या करेंगे आप? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो a और b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, i कैप j कैप एंड k कैप। 2 minus 3 and 1 minus 2 4 and minus 1, ठीक है। तो कितना आएगा ये? i कैप 3 minus 4 minus j cap minus 2 plus 2 plus k cap 8 minus 6, कितना आएगा? minus i cap एंड ये तो 0 हो जाएगा, plus 2 k cap that is root 5 units। तो कितना है? root 5 units। on that note स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लीजिए। we finished this video and in this video we have completed the vectors। सो अभी तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा, लॉगरिथमिक पढ़ा, ग्राफ्स बनाने सीखे फंक्शंस के, एंड देन वी आल्सो लर्नड अबाउट अप्रोक्सीमेशंस
mensuration, integration, differentiation. We learned how to calculate slope, how to calculate maxima, minima. Then we learned about vectors. What are vectors? What are the type of vectors? How do we add vectors? How do we subtract vectors? How do we multiply vectors? So ये सब काम जब आप कर लेंगे, then you are ready to rock the world of physics. तो वहां पर आप फिजिक्स सीखने के लिए कंप्लीटली तैयार है। तो होप आप सब इन सारी वीडियोस के थ्रू, हमारे जो आगे के वीडियो आने वाले हैं पहले इन सारी वीडियो के थ्रू होंगे, फिर उन वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स मजबूत हो जाएगी, देन यू विल श्योरली बी एबल टू डू वेरी गुड इन फिजिक्स। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। एंड वन मोर थिंग, कीप डूइंग द असाइनमेंट्स, keep asking the questions in the comment section if you have any doubt, and if you have sufficient doubts we will also release some videos regarding the solutions of the assignment आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां हम अब रेगुलर इंटरवल पे असाइनमेंट्स अपलोड करने वाले हैं। आफ्टर दीज वीडियोस वन आफ्टर वन द अदर यू विल रिसीव द असाइनमेंट्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।